हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया गाइज, दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स आ गया है, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है एंड आई कैन सी lots of people are there who got good marks and we are so happy. As a teacher, I'm so happy that my students are getting good marks and few of my students, they didn't get good marks. So as I said, they were my favorite students, means there is something positive, something very nice in them. So this video is dedicated to those students who didn't get good marks, as they think marks are never good, never bad. They are just like level, higher and lower. That's it, nothing else. Means like they are not getting up to the level they would have like thought, they would have wished for. They didn't get that much marks, and then they start worrying about these things, that what will happen, what I'll do now. I didn't get good marks. What will happen in my life? Trust me, this class 10th result never going to bother you again after 10 days. After 10 days, everyone will forget that how much you got, how much you didn't, why you didn't get that, like higher marks and all. Everyone will forget, guys. सब कोई भूल जाएगा. In fact, even your parents, they will also forget this thing. And the certificate which you will get for class 10th marks, it will help you like mostly in getting a driving license. Trust me, nothing more, nothing less. So I don't think कि class 10th के marks के लिए आपको इतना ज्यादा परेशान होना चाहिए. नहीं, मत होइए परेशान, क्योंकि eventually it is not going to help you, your good marks is not going to help you more in your life. क्या अब जब तुम एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, 10th का बोर्ड निकाल के दिखाओगे, सी आई एम सक्सेसफुल नाउ, आई वाज सक्सेसफुल इन क्लास 10th एज वेल? नो. हु नोज व्हाट आई वाज इन क्लास 10th. मैं अपनी बात करूं, आई डिडंट गेट गुड मार्क्स इन क्लास 10th. बाय द वे, एट दैट टाइम व्हेन रिजल्ट केम आउट, आई ऑलरेडी हैड स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर क्लास 11th, एंड देन व्हेन माय रिजल्ट केम आउट, आई वाज वरीड. For like 1 or 2 days I was worried as well, but there was no one to whom I can talk. I can share my feelings, what I am feeling about my results. There were few boys, they were not my friends, but still we were living in hostel, so my hostel roommates were there. So in fact my roommate, he got like 94% and I was too low in compared to him. So, but he told me one thing, dude, this marks is not going to help me. 94 marks is not going to help me anywhere in my life. And those your marks, it didn't get so well, but it is not going to help you or bother you in your life as well. वही चीज आप पे भी लागू होती है. अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, it is not going to bother you in your life. Try to find the way that what to do for the next time. Decide today itself that for the next time you will try to do something different so that this grace will up. Alright, the grade you are getting right now, it should be a little bit higher than this one when you next time you try this. At this point of time, whatever I am saying, मैं कुछ भी तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे मन में एक बात बैठी हुई, सर इससे क्या फर्क पड़ता है? Deed had been done, right? Deed is done. So अब तो कुछ बदल नहीं सकते. बुरा तो लगता है, हाँ, ये मान सकता हूं मैं, तुम्हारी गलती थोड़ी सी है. तुम्हारी गलती यही है कि जो तुम अभी फील कर रहे हो, इसको तुमने विजुअलाइज नहीं किया था पहले. अगर तुमने इस चीज को विजुअलाइज कर लिया होता, देन यू वुड हैव डन समथिंग बेटर देन दिस वन, राइट? बट अब तो टाइम चला गया. और एक बात मेरी मानो ना, टाइम इज नेवर द मिस्टेक. मिस्टेक इज व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट. पास्ट में जो हो गया, इट वॉज नेवर अ मिस्टेक. लर्न फ्रॉम इट. इट इज अ लेसन नाउ. इट वॉज नेवर अ मिस्टेक. वो तुम्हारी अब गलती नहीं रह गई है, वो एक लेसन बन चुका है. ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट. ठीक है? सो
डोंट थिंक कि तुमने गलती कर दिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आई कैन एडमिट इट कि हो सकता है कि तुम्हारे क्लास में जो जिस लेवल पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, यू वर नॉट मैचिंग दैट लेवल, मे बी, तो गलती तो तुम्हारी नहीं है। हो सकता है द टीचर वाज टीचिंग यू, मे बी ही डिडंट केम टू दैट लेवल वेयर यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, बट तो वहां तो टीचर की गलती मान सकते हैं। किसकी गलती मानोगे? अपनी, टीचर की, पेरेंट्स की, किसकी गलती मानोगे? किसी की नहीं, गलती माननी ही नहीं है, हमारी गलती नहीं है, दैट्स इट। हाँ, हो गया सो हो गया, इट इज अ लेसन नाउ, ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। उसके बाद से बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को सक्सेस मिलता है ना, तो डोंट गेट टू हाई फॉर दैट सक्सेस, और अगर फेलियर मिलता है तो डोंट गेट टू लो फॉर दैट फेलियर, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट डूड, नथिंग इज परमानेंट। सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट परमानेंट। फेलियर शुडंट बी फेटल, राइट? क्योंकि ये एक पहला स्टेप था, एक सीढ़ी चढ़ के गिर गए तो क्या छत पे नहीं जाएंगे? अरे भाई, दो सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। एक बार गिर के समझ में आ गया, बात समझ गए हम कि कैसे चलना है, ये तुम्हें भी पता चल गया कि अब कैसे पढ़ना है, अब करके दिखाएंगे ना। आने दो अगला क्लास, फिर पढ़ते हैं अच्छे से। तो अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी लाओ, और ये जो सैडनेस है इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, इससे सीखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन ट्राई टू डू दिस। तब देखो मजा, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। जब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। बसरते कि आप इस गलती से थोड़ा सा सीख लो, ठीक है, कुछ अलग करने का सोचो। एक पॉइंट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कीप योर ड्रीम्स अलाइव इन योर माइंड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि मेरा कुछ अपना ड्रीम है, व्हेन आई एम गेटिंग फेलियर आई ट्राई टू थिंक अबाउट माई ड्रीम, कि मुझे वो काम करना है। माई ड्रीम इज टू लाइक गिव जॉब टू 100 पीपल, तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि 100 आदमी को मैं जॉब दे सकूं। जब मेरा काम एक फेल हो जाता है तो मैं और भी मेहनत से करता हूं, क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मुझे 100 आदमी को जॉब देना है, 100 आदमी का परिवार भूखा ना सोए, इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। तो वो मेरा ड्रीम है, मैं उसके लिए काम करूंगा। मैं एक बार फेलियर हो गया तो फिर मैं उठूंगा नहीं क्या? क्यों नहीं उठूंगा, राइट? उठ सकते हैं। तो ट्राई टू थिंक अबाउट योर ड्रीम एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम इटसेल्फ, टुडे इटसेल्फ। और यहाँ पे हमारा डिसीजन टेकिंग का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है कि व्हेन वी आर गेटिंग लाइक लो मार्क्स, देन उस समय हमारा डिसीजन करने का जो एबिलिटी होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, एंड वी ट्राई टू टेक डिसीजन रॉन्ग। तो अभी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि टेक डिसीजन एज एक्टिव चॉइस, एक्टिव चॉइस से डिसीजन लो। जैसे कि मान लो क्लास 10 के पहले तुम्हें सोचा था तुमने कि मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे मुझे IIT में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करना है, चाहे मुझे UPSC क्लियर करना है, वॉट एवर इट वॉज। तो उस सोच को अभी भी जिंदा रखना है तुम्हें, उसको, उस एक्टिव चॉइस करना कि हाँ अब मुझे डॉक्टर ही बनना है, देखता हूं मैं कैसे नहीं बनता, ठीक है। तो डोंट वरी। उसके बाद से कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा था तुम्हारे लिए। कुछ लोग, पता है, रिश्तेदार, वो गाना भी मुझे याद आ जाता है। तो रिश्तेदार से बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। कुछ अपने रिलेटिव्स होते हैं, व्हेन दे गेट टू नो कि CBSE ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, अब उनके रिलेशन में यहाँ का बच्चा है जो 10th का एग्जाम दे रहा था, चल फोन करते हैं। और रिलेटिव्स फोन करके जो भाई साहब सवाल करते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि try to stay away from those negative people, क्योंकि पता है those negativity they will put right in your brain. नेगेटिविटी तुम्हें भर जाएगी तो तुम जो सोचते हो वो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो stay away from those negative people. हाँ, but keep in mind, don't get stay like away from your parents, because parents they have complete right to scold you if you are not getting good marks, right? और पेरेंट्स ही है ना, माँ बाप है, डांट लेंगे, 2-4 झापड़ मार लेंगे, क्या हो जाएगा यार। बचपन में तो इतना धोते थे तुम्हें, अब 1-2 झापड़ मार लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा डांट ही दिया तो क्या हो गया यार, नथिंग, राइट? उनका हक है, वो कर सकते हैं। तो पेरेंट्स से परेशान मत हो, वो तुम्हें डांट सकते हैं, उन्हें डांटने दो। हाँ, एक काम तुम जरूर कर सकते हो कि go to your parents, if possible go to your dad and say sorry once. Like saying sorry to your dad, your father is quite difficult, mainly for boys.
because in our society we maintain a little gap between father and son, right? So वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट एटलीस्ट यू कैन गो टू योर मॉम एंड यू कैन से सॉरी कि अब इस बार तो अब जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। थोड़ा सा आप गुस्सा मत होइए, ऐसा बोलो एक बार, देन सी तुम्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद दुनिया जहान क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे सब कान से इस कान से जाएगा, इधर से निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सो से सॉरी वंस टू योर मॉम, डैड एंड इवन योर सिबलिंग्स। अगर अदर मतलब आपसे एल्डर है, कोई दूसरे भाई बहन है आपके, तो यू कैन से सॉरी टू देम एज वेल। एक बार सॉरी बोल देने से तुम्हारा मन बड़ा हल्का हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट आया, चाहे तुम सॉरो हो, मतलब तुम थोड़ा सैड हो एंड ऑल, नथिंग, कुछ नहीं होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक बार बोल के देखो, मजा आएगा। डू नॉट विजुअलाइज द कंडीशन कि भाई साहब अब मेरा रिजल्ट खराब हो गया तो अब मैं क्या करूं, ऐसा होने लग जाएगा, सब लोग मुझे स्कोल्ड करेंगे, सब लोग मुझे अजीब ढंग से देखेंगे, मम्मी खाना नहीं देगी, पापा हमेशा मारते रहेंगे, डांटते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। डो नॉट विजुअलाइज एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी विजुअलाइज मत करो। अगर अच्छा रिजल्ट आया है तब भी विजुअलाइज मत करो, और अगर खराब नंबर आया तब भी विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है? क्योंकि जब तुम विजुअलाइज करने लगोगे, इट विल पुल यू टुवर्ड्स द एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होने लग जाएगा तुम्हें, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डू नॉट विजुअलाइज एनीथिंग, इफ इट इज कमिंग इन योर माइंड जस्ट स्किप इट, कुछ और सोचो, कुछ और करने लग जाओ, स्टार्ट प्लेइंग एनी मोबाइल गेम, सो यू विल फील बेटर। डू नॉट विजुअलाइज एनीथिंग। और उसके बाद से जो लास्ट सजेशन मेरे तरफ से है कि कीप इन टच विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ पॉसिबल योर टीचर्स। सो योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स, दे विल हेल्प यू अलॉट। तुम्हारे फ्रेंड्स जिनका खराब नंबर आया है, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उनसे बात करके देखो। यू विल थिंक कि अब कुछ कभी कभी होता है ना कि हम, मेरा फ्रेंड है और उसका अच्छा नंबर आ गया, मेरा अच्छा नंबर नहीं आया, तो आई थिंक अब पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो तो अब हीरो बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दैट गाय हु गॉट गुड मार्क्स, पता है जब इंसान के अंदर अच्छाई आने लग जाती है ना, उसको सामने रिजल्ट दिखने लग जाता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो पोलाइटनेस भी साथ ही साथ आता है। बहुत रेयर केस में ही होता है कि उसके अंदर पोलाइटनेस नहीं आएगा। जिसका अच्छा मार्क्स आया है ना, वो ऑटोमेटिकली ही पोलाइट हो जाएगा। जब जैसे उसको पता चलेगा तुम्हारा अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया, तो वो पोलाइट हो जाएगा तुमसे। तो टॉक टू हिम, टॉक टू हर, ये बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है बात करने का। बात करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। एटलीस्ट यू विल थिंक, अब जो टॉपर्स होते हैं ना, मे बी वो, उनके दिमाग में भी ये चलता है कि अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो अब वो मेरे से बात नहीं करेगा। इस चक्कर में दोनों यही सोच रहे हैं कि वो मेरे से बात नहीं करेगा, वो सोच रहे हैं कि तुम बात नहीं करोगे, और इस चक्कर में ये दूरी बढ़ती चली जाती है। तो अभी दूरी नहीं बढ़ाना है, अभी फ्रेंड से बात करो, टीचर से बात करो, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखना सर का, कि ये 10th बोर्ड का मार्क्स से कुछ नहीं होना जाना है, कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा होने वाला है आगे लाइफ में। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है जिंदगी यार, जिंदगी अभी भी स्टार्ट हुई है, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं बड़ा सोच रहा था कि क्या करूं तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तो स्कूल्स भी बंद है, तो मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूं। तो दिस वीडियो इज लाइक अ मीडियम, यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू हम एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो दिस वाज लाइक माय डिसीजन कि अभी मुझे बात करना चाहिए अपने स्टूडेंट से। तो डोंट वरी गाइस, आई एम देयर फॉर यू ऑल द टाइम। whenever you need me, I am here. तो you can make a call to me। और परेशान होने की बात नहीं है, आगे आपको क्या करना है सोचो और बस उसमें लग जाओ, ठीक है?